We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello all, welcome. So today I am going to discuss the next topic of the drawables. Okay, right now let me remind you, we are continuing unit number 4, chapter number 11. In current semester it is the last chapter of our subject. Actually this chapter is 11th chapter, but I have skipped this chapter while taking regular chapters. So we have already completed chapter number 12, 13, 14, 15, 17 and 19, and now we are coming back on the 11th chapter, which was pending. Okay, so in my earlier lecture I have discussed, we have already conducted 4 sessions for this chapter. In the first 2 sessions we have discussed how to define SAPs as XML resources. Okay, in the third session I have explained you how can we define SAPs programmatically using Java code, and in the fourth session I have discussed how can we apply gradient effects on SAPs programmatically. Okay, in the second session I have discussed these gradients, applying these gradients as XML resources. So my next topic is drawing on screen. So you all are aware of drawing in the childhood, and many of you are also fond of painting. So right now in this lockdown situation, many of you might be passing time using drawing also. So when you are drawing, you have one chart paper or one drawing paper on which it is generally a plain chart paper like white color or light blue color. In this chart paper or drawing paper, you are applying your painting using pencil, brush, anything else. Okay, so what I am trying to explain you is that our screen is also one type of canvas. Okay, which we may consider that every point on that screen is identified by a particular location. Generally screen is divided in 2-dimension orientation. Okay, the horizontal is x-axis and the vertical is y-axis, and the origin of this screen coordinate system is at the upper left corner of the screen. Okay, so canvas is like one drawing paper. Okay, drawing paper is physical one, canvas is one something which is logical. We may think that our screen is a canvas, its origin is located at upper left corner, and using a brush means logical brush. Physically we are using brush and some color. Here there are methods using which we can drawing. For example, we can draw using line method, draw line method, draw oval, draw circle, etc. methods are available using which we can draw on a canvas. But basically canvas is what? It is a blank sheet. Okay, it is a blank screen on which we can draw anything. Okay, so we have already discussed the various views and layouts. Moreover, we can also draw objects on the screen. In addition to images such as PNG and JPG, we can paint text, primitive shapes on the screen. So up to this chapter we are using many different views on our layout. Whenever we put any view on our layout, whether it is a button, text view, edit view, image view, whatever, it is actually drawn on the screen. Okay, we are just set content view, we are using method set content view, but actually internally everything is drawn. Okay, so basic thing is drawing. To show anything on the screen, it means drawing something.
So at a low level we can also draw anything if we want to draw. If we are going to develop any graphical application, animation related application or multimedia application, it might require to draw. So it is also available that in addition of to JPG, BMP such images, we can also draw our own, we can also define our own image and draw them. We can paint these items using various colors, styles and gradients. We have also seen some example of this gradients and style, and also modify them using standard image transformations. Even object can be animated to give illusion of motion. Yeah, it may happen. Suppose कि हमारे पास एक image है, suppose तो उस image को हम स्टैंडर्ड ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि रोटेशन मतलब कि उसको रोटेट करना, स्केलिंग मतलब कि उसकी साइज बढ़ाना कम करना, ट्रांसलेशन मतलब कि उसकी जगह उसका लोकेशन चेंज करना, इस तरह के स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं, तो देखने वाले को मोशन दिखेगा क्लाइंट को. सो वर्किंग विथ कैनवासेस एंड पेंट्स. To draw on the screen, we need a valid canvas object. We can get a valid canvas object by extending the view class and implementing the onDraw method. देखो कई बार एग्जाम में थ्योरी में पूछा गया है कि कैनवास क्या है और उसका उपयोग क्या है. ओके, तो पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि हमें ड्राइंग करना है, कुछ भी हमें ड्राइंग करना है तो ड्राइंग करने के लिए कैनवास चाहिए. तो कैनवास आप लाओगे कहाँ से? तो कैनवास आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? आपको जो इनबिल्ट व्यू क्लास है, जो हर एक व्यू का सुपर क्लास है, उस व्यू क्लास को आपको एक्सटेंड करना है. समझ में आ रहा है? मतलब कि आपको एक ऐसा क्लास बनाना है कि जो व्यू क्लास का सब क्लास हो, और उस क्लास में आपको इम्प्लीमेंट करना है onDraw मेथड. बेसिकली जब भी हम कोई व्यू यूज करते हैं, बटन सपोज कि हमने बटन को हमने अपनी स्क्रीन पे पुट किया, हमने एडिट टेक्स्ट को अपनी स्क्रीन पे पुट किया, तो एडिट टेक्स्ट इंटरनली एक क्लास है. जैसे ही आपने अपनी स्क्रीन पे उसे रखा है, उसकी onDraw मेथड कॉल होगी. ये इंटरनली होता है. आपने बटन को रखा स्क्रीन पे, तो बटन की इंटरनली onDraw नाम की मेथड है, वो कॉल होगी, और उस onDraw मेथड के अंदर कोड लिखा है जिसके द्वारा ये बटन ड्रॉ होके आता है. अंडरस्टैंड? एवरीथिंग इज ड्रॉन. कुछ भी स्क्रीन पे है, कोई भी चीज आप रखते हो वो ड्रॉ होके ही आता है. एक डॉट भी ड्रॉ होके आता है. तो ये सब अपने आप ड्रॉ होता है. बटन, टेक्स्ट व्यू, स्पिनर, लिस्ट व्यू, एवरीथिंग इज ड्रॉन. और उसके लिए क्या होता है? onDraw मेथड होती है. हमें पता है कि बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू सभी व्यूज व्यू क्लास के सब क्लास है. तो ऐसा ही एक सब क्लास हम अपना बना सकते हैं, और जब वो अपना सब क्लास स्क्रीन पे पुट हो तो दिखना क्या चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं onDraw मेथड के अंदर. तो हमें क्या करना है? व्यू क्लास को एक्सटेंड करना है, अपना खुद का एक जावा क्लास बनाना है, और onDraw को एक्सटेंड करना है, इंप्लीमेंट करना है, ओवरराइड करना है. देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है. तो हम भी अपना जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है उसमें एक क्लास को भी ऐड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास. ओके, और यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ उसका माई कस्टम व्यू. ओके, और उसका जो ये है तो क्लास, उसका सुपर व्यू कौन सा होगा? व्यू क्लास. ठीक है, तो व्यू को मैंने उसका सुपर क्लास रखा. तो इस तरह से ये अपना क्लास डिफाइन हो गया. अब देखो उसमें अभी तो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि व्यू उसे मिल नहीं रहा है. तो यहाँ पे अल्टर एंटर इंपोर्ट कर दिया, क्लास हो गया इंपोर्ट अपना क्लास. अब जब आप किसी भी क्लास को एक्सटेंड करते हो तो उसकी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है जो आपको ओवरराइड करनी पड़ती है. तो यहाँ पे हमने अभी बात की onDraw मेथड, तो वो आपको ओवरराइड करनी होगी, और इसका एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना होगा. तो कंस्ट्रक्टर तो हमने डिफाइन कर दिया. ठीक है, अब हम onDraw को हमने देखो ओवरराइड किया, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको आर्ग्यूमेंट क्या मिली? कैनवास का ऑब्जेक्ट. कैनवास एक बिल्ट इन क्लास है, उसका रेफरेंस यहाँ पे पास होता है. ये जो कैनवास का रेफरेंस यहाँ पे पास हो रहा है, ये हमने नहीं बनाया, ये OS ने बना के हमें दिया. हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे. तो OS ने हमें बना के दिया है, तो स्क्रीन जो है, स्क्रीन उसका जो ड्राइंग पेपर है स्क्रीन का, उसका रेफरेंस हमें OS ने दिया, और हम उस पर ड्राइंग कर सकते हैं. अभी इसके लिए हमारे पास कैनवास की मेथड्स है.
देखिए ऑन ड्रॉ में, अब अगर आपको कैनवास पे ड्राइंग करना है, देखो सबसे पहले कैनवास पे ड्रॉ कलर सेट किया, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सुपर को हम निकाल दे, कैनवास डॉट ड्रॉ सेट कलर, सॉरी ड्रॉ कलर करना है तो ओके, यहाँ पे मैं कलर डॉट शान कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब पेंटिंग करना है, तो उसके लिए पेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि आप मैन्युअली पेंटिंग करते हो किसी भी ड्राइंग शीट में, तो आपको ब्रश चाहिए और कलर की बोतल चाहिए, उसमें आप ब्रश को डुबो के फिर पेंटिंग करोगे। इसी तरह हमें यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए पेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। पेंट का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, तो उसकी बहुत सारी मेथड्स है कि जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग तरह की इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, पेंट इज इक्वल टू कैनवास डॉट गेट कैनवास, सॉरी पेंट इज इक्वल टू न्यू पेंट। ओके, फिर इसे हमें कैनवास पे एसोसिएट करना है। अब देखो पेंटिंग करना है तो कौन से कलर से पेंटिंग करना है। जब आपके हाथ में ब्रश होता है तो आप किसी भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग कलर की बोतल्स आपके पास होती है, उसमें से किसी भी बोतल में आप ब्रश को डुबोगे फिर कलर करोगे। तो ये हम अभी डुबो रहे हैं, हमने ब्रश को डुबोया, कौन से कलर में अभी डुबोना है, तो हम सपोज कि कलर डॉट रेड में डुबोते हैं, ठीक है। फिर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब कि कुछ भी ड्रॉ करना है। कैनवास की ड्रॉ बहुत सारी, देखो ड्रॉ सर्कल एक्स वाई, इसके सेंटर पॉइंट है इसका एक्स, तो बराबर सेंटर में हमें ड्रॉ करना है सपोज। तो कैनवास डॉट गेट विड्थ डिवाइड बाई 2, कैनवास की जो साइज है डिवाइड बाई 2, हाइट डिवाइड बाई 2, उससे क्या मिलेगा, सेंटर पॉइंट। कैनवास डॉट गेट हाइट डिवाइड बाई 2, ओके। और लास्ट में पेंट का ऑब्जेक्ट, तो ये हम यहाँ पे पेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, तो ये रेड कलर से ड्रॉ होके आएगा। क्या हुआ, रेडियस, सॉरी लास्ट आर्ग्यूमेंट रेडियस कितनी रखनी है, तो रेडियस चलो हम कर देते हैं 50। ओके, पेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया, सर्कल ड्रॉ होगा, और सर्कल ड्रॉ होने के लिए जो ड्राइंग के एट्रीब्यूट्स है वो कहाँ से आएंगे, पेंट से। अभी पेंट में क्या सेट किया है हमने, रेड कलर का ड्राइंग, इतना सेट किया है, ठीक है। अब चलो, अब ये हम ड्रॉ करना चाहते हैं, ओके, इस कैनवास को शो करना चाहते हैं। तो कैनवास जो है, मतलब कैनवास है वो किसके ऊपर है, माई कस्टम व्यू। ये जो कस्टम व्यू हमने बनाया अपना खुद का व्यू, उसके लिए ये कैनवास है। तो हमें अगर इस कैनवास को, इन अदर वर्ड्स इफ यू वांट टू शो दिस माई कस्टम व्यू, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्टिविटी है, उसमें ऑन क्रिएट मेथड में सेट कंटेंट व्यू में पास कर देंगे न्यू सेट कंटेंट व्यू में, जहां पे पहले हमारा लेआउट का रेफरेंस था वहां पे पास कर देंगे अपना ये माई कस्टम व्यू का ऑब्जेक्ट। क्या पास कर देंगे, न्यू माई कस्टम व्यू और आर्ग्यूमेंट दिस। अब क्या होगा, हमारी जब ये एक्टिविटी रन होगी तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी, उसमें सेट कंटेंट व्यू मेथड कॉल होगी, तो सेट क्या होगा स्क्रीन पे, माई कस्टम व्यू का ऑब्जेक्ट। तो न्यू माई कस्टम व्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही कस्टम व्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसे सेट कंटेंट व्यू किया जाएगा, तो उसको ड्रॉ करने की आवश्यकता होगी, और ड्रॉ करने की जब आवश्यकता होगी तो ये ऑन ड्रॉ मेथड कॉल होगी, तो उसके अंदर जो लिखा है हमने वो स्क्रीन पे ड्रॉ होके आएगा।
ओवरराइड करना है ऑन ड्रॉ को, उसके अंदर क्या करना है, ऑब्टेन अ रेफरेंस टू कैनवास। ओके, किस तरह से कैनवास का रेफरेंस तो मिलता ही है, फिर create a paint object for painting, फिर draw using various drawing methods of canvas, और उसके पहले set attributes properties of पेंटिंग। ओके, एट्रीब्यूट मतलब कि कलर वगैरह सेट करना, जैसे कि हमने यहाँ पे कलर सेट किया है। तो देखो ये क्या हुआ, ये जो अभी आउटपुट आया ये आपका कैनवास आ गया, और कहने का मतलब ये जो पूरा स्क्रीन पे आ रहा है अभी वो हमारा व्यू है, जो हमने व्यू बनाया वो आ रहा है, माई कस्टम व्यू। और उसमें हमने क्या रखा है, केवल एक अभी रेड डॉट मतलब कि एक रेड सर्कल ड्रॉ किया है, वो आ रहा है। ओके, इसकी हाइट भी हम बढ़ा सकते हैं, अभी हमने रेडियस 50 रखा है, उसको 200 भी कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, तो ये बड़ा सा सर्कल आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। Canvas class is available as android.graphics.canvas and it holds the draw calls for a rectangle space on the screen. Canvas class वो android.graphics पैकेज में आया हुआ है, कैनवास नाम से, सी कैपिटल। ओके, और वो स्क्रीन पे एक लंबचौरस रेक्टेंगल स्पेस को डिफाइन करता है। कैनवास का जो शेप है वो बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, रेक्टेंगल ही होता है, स्पेस। ओके, Canvas class contains methods for drawing images, tags, shapes and support clipping also. Moreover, we can retrieve the size of the canvas using the methods get width and get height. जो अभी हमने यूज की थी, आप जानना चाहते हो कि जो आपके पास कैनवास है, मतलब कि जिस व्यू को आप डिफाइन कर रहे हो उससे जुड़ा जो कैनवास है उसकी करंट साइज कितनी है, विड्थ और हाइट, तो वो आप रिट्रीव कर सकते हो गेट विड्थ एंड गेट हाइट के द्वारा। Understanding Paint. Paint class is available as android.graphics.paint and it encapsulates style, complex color and rendering information. So Paint जो है वो एक्चुअली मैंने आपको कहा कि वो पेंटिंग से जुड़ी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, जैसे कि आपको कलर कौन सा यूज करना है, शेडिंग कैसा देना है, कलर फिल कैसा करना है, ओपेक करना है, कोई स्टाइल करनी है, ग्रेडियंट फिल करना है, एटसेट्रा। तो ये सभी पेंटिंग प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो पेंट ऑब्जेक्ट के साथ। और जब आप ड्राइंग करते हो कैनवास पे तो उस ड्राइंग के साथ आप मेंशन कर सकते हो पेंट का ऑब्जेक्ट। तो वो जो ड्राइंग होगा उसमें जो ड्राइंग होगा वो इस पेंट ऑब्जेक्ट से होगा। अ पेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाइड टू अ ड्रॉएबल लाइक ग्राफिक शेप और पीस ऑफ टेक्स्ट इन अ गिवन टाइप फेस। ओके, ये पेंट ऑब्जेक्ट आप किसी भी ग्राफिक, किसी भी शेप और टेक्स्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। देखो हमने उसको अप्लाई कैसे किया, जब हमने सर्कल ड्रॉ किया तो लास्ट आर्गुमेंट क्या पास की, उसमें पेंट, मतलब कि ये सारा ड्रॉ होगा, मतलब कि एक सेंटर बराबर सेंटर में हो, स्क्रीन के सेंटर में हो, ऐसा सेंटर पॉइंट हो और रेडियस कितना हो, 200 हो, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ होगा। लेकिन कौन से कलर, कौन सी स्टाइल इसमें जो है पेंट में, वैसे स्टाइल से। The object of canvas is available to us in on draw method and we need to create object of paint using its constructor। जो अभी हमने किया कि कैनवास का ऑब्जेक्ट हमें
ऑन ड्रॉ में एज एन आर्ग्यूमेंट मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, और पेंट का ऑब्जेक्ट वो हमें उसके कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाना पड़ेगा। पेंट इज इक्वल टू न्यू पेंट, फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार हमारे पास ये पेंट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो गया, वी कैन यूज इट टू ड्रॉ ऑन कैनवास। वर्किंग विथ कलर्स, पेंट कलर्स, वी कैन सेट द बैक कलर ऑफ द कैनवास यूजिंग इट्स ड्रॉ कलर मेथड, जो हमने अभी श्यान कलर सेट किया। Moreover, to draw with a specific drawing color, we can set the drawing color of a paint object using its set color method. अब देखो दो तरह के कलर सेट होते हैं, एक बैकग्राउंड कलर और एक फॉन्ट कलर, मतलब कि ड्राइंग कलर। तो सेट कलर आप कॉल करोगे तो उससे ड्राइंग का कलर सेट होगा, और ड्रॉ कलर कॉल करोगे उससे पहला जो आपका बैकग्राउंड है वो पूरा फिल हो जाएगा। देखो ड्रॉ कलर, हमने यहाँ पे ड्रॉ कलर को यूज किया, ड्रॉ कलर कैनवास पे, तो पूरा स्क्रीन श्यान हो गया, बैकग्राउंड पूरा कैनवास वाइट श्यान हो गया। फिर सेट कलर हमने कॉल किया, सेट कलर, तो सेट कलर से क्या हुआ, सेट कलर जब रेड किया तो ड्राइंग रेड कलर से हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि ड्रॉ कलर जो हम करते हैं वो कैनवास पे करते हैं, कैनवास का बैकग्राउंड, ओके। और सेट कलर करते हैं वो पेंट पे करते हैं, कि जो पेंटिंग करना है हमें उसका कलर। वर्किंग विथ पेंट एंटी-एलियासिंग, anti-aliasing makes many graphics look smoother. This property can be set while creating object of paint using the constructor. Anti-alias flag से क्या होता है कि आपका ड्राइंग स्मूथ हो जाएगा, आपका जो ड्राइंग है वो स्मूथ हो जाएगा। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो जब पेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है एंटी-एलियास फ्लैग। Working with paint styles. Paint styles controls how an object is filled with color. The set style method is used for this purpose. देखो अगर आपको स्ट्रोक स्टाइल सेट करना है तो वो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पेंट क्लास की सेट स्टाइल मेथड यूज करनी है, पेंट डॉट सेट स्टाइल, ओके। और यहाँ पे पेंट डॉट पेंट डॉट स्टाइल डॉट स्ट्रोक, ठीक है। अभी तो अपना जो सर्कल है वो पूरा फील्ड सर्कल है, तो वो शायद हमें पता ना भी चले स्ट्रोक्स का। देखो ये सर्कल अपना आया है, यहाँ पे सर्कल, फील्ड नहीं है अभी, वो केवल स्ट्रोक स्टाइल सेट किया है तो वो स्ट्रोक स्टाइल उसमें दिख रहा है यहाँ पे। वर्किंग विथ टेक्स्ट, तो जब आप कैनवास पे वर्क कर रहे हो तो it may be possible, there may be situation when you want to display some text। तो देखो जब आप किसी सिंपल से व्यू पे काम कर रहे हो, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, तो उसमें तो टेक्स्ट डिस्प्ले होता ही है। लेकिन जब आप ड्राइंग से काम कर रहे हो, आप ग्राफिक्स से काम कर रहे हो, ग्राफिक के साथ, और तब आपको ज़रूरत पड़ी है कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करने की, तो यहाँ पे कैनवास में भी हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन कैनवास पे जो भी कुछ दिखता है, जो भी कुछ हमें करना है, दिखाना है, वो ड्रॉ होके ही करना है, ड्रॉ होके ही आएगा। तो टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो टेक्स्ट भी ड्रॉ हो सकता है। इसके लिए जैसे ड्रॉ सर्कल मेथड है उस तरह से ड्रॉ टेक्स्ट मेथड भी है। पेंट क्लास प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ यूटिलिटीज एंड फीचर्स फॉर रेंडरिंग टेक्स्ट टू द स्क्रीन इन डिफरेंट टाइप्स एंड typeface and styles. Android provides several different font types and styles. तो Android हमें अलग अलग बहुत सारे font typefaces, font styles प्रोवाइड करता है, font face प्रोवाइड करता है और styles भी प्रोवाइड करता है. Moreover, application can also use custom fonts by including font files as assets and loading them using asset manager.
एडिशनली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एंड्रॉयड के SDK में ना हो ऐसे भी टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। हम अलग से फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके एसेट फोल्डर में रख के उसे अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन में एक एसेट फोल्डर होता है, वहाँ पे हम उसे रख के यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स एंड टाइपफेसेस, बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड यूजेस sans serif typeface, but others are also available. The following except draws text in the default typeface. अब देखो एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट sans serif का यूज़ करता है टाइपफेस, लेकिन हम उसे बदल भी सकते हैं, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। सी ये जो कोड है उसमें कुछ लिखा है ऑल इज़ वेल। ओके, तो इसके लिए क्या किया, कैनवास डॉट ड्रॉ कलर कोई कलर सेट किया है। हम यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं। ओके, फिर पेंट अपना जो है उसका सेट टेक्स्ट साइज कैनवास में पेंट कलर डॉट रेड, पेंट डॉट सेट टेक्स्ट साइज वो हमने 30। ओके, फिर पेंट डॉट सेट टाइप फेस। कौन सा टाइप फेस यूज करना है, तो कोई नहीं, मतलब कि डिफॉल्ट जो उसका है sans serif वही यूज करना है। फिर सेट कलर, तो वो तो रेड किया ही है हमने। अब कैनवास डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, कैनवास डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, और यहाँ पे हम पास करेंगे ऑल इज वेल। ठीक है, और कहाँ पे ड्रॉ करना है, गेट विड्थ बाई 2, फिर गेट हाइट बाई 2 और पेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतनी साइज के फॉन्ट्स आएंगे, कलर होगा उसका रेड, और लिखा हुआ ड्रॉ क्या होगा, अभी ऑल इज वेल टेक्स्ट ड्रॉ होगा। कहाँ पे, स्क्रीन के सेंटर से उसकी शुरुआत होगी, बराबर सेंटर में नहीं आएगा, वो सेंटर से एक ही शुरुआत होगी, तो ऑल इज वेल ऐसा आएगा है, ऑल इज वेल। फॉन्ट थोड़े छोटे हैं इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं। देखो इस तरह से ऑल इज वेल आया लिखा हुआ। वी कैन ऑल्सो लोड ए डिफरेंट टाइपफेस विद डिफरेंट स्टाइल। ये तो हमने डिफॉल्ट स्टाइल में डिफॉल्ट फॉन्ट्स जो sans serif है उसको अभी ड्रॉ किया, अनबोल्ड, अन इटैलिक, अन अंडरलाइन, नॉर्मल फॉन्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे हम अलग से फॉन्ट को क्रिएट कर रहे हैं टाइपफेस का ऑब्जेक्ट बना के। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टाइपफेस, अपना टाइपफेस, ठीक है, इज इक्वल टू टाइपफेस डॉट क्रिएट। फिर वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है, जो भी फॉन्ट आपके पास अवेलेबल है टाइपफेस डॉट करोगे तो फॉन्ट्स के नाम आ जाएंगे, मोनोस्पेस, सेरिफ, सैन सेरिफ, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल एट्सेट्रा। जो भी अवेलेबल है वो इस लिस्ट में आ जाएगा। हम यहाँ पे मोनोस्पेस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर टाइप उसका स्टाइल टाइपफेस डॉट बोल्ड, इटैलिक दोनों रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक फॉन्ट को डिफाइन किया, मोनोस्पेस फॉन्ट और स्टाइल उसका बोल्ड, इटैलिक। सेट टेक्स्ट साइज। अब हमें
पेंट पे ये सेट टाइप फेस करना है, टाइप फेस। ओके, तो हमने ये जो फॉन्ट्स यहाँ पे डिफाइन किए, टाइप फेस फॉन्ट का डिफाइन किया, उस टाइप फेस को यहाँ पे सेट कर दिया। तो अब जो फॉन्ट ड्रॉ होके आएगा वो इस बोल्ड इटैलिक और इस फेस में आएगा, मोनोस्पेस में। मैंने जैसा बताया आपको, ये जो सेरिफ या मोनोस्पेस हमने यूज़ किया है, मतलब कि वो अवेलेबल है एसडीके में, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी यूज़ करने हमें तो हम यहाँ पे एसेट्स फोल्डर में रख के यूज़ कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन में एसेट का एक फ़ोल्डर बना के उसमें हम रख सकते हैं फॉन्ट को, फिर वहाँ से लोड कर सकते हैं। देखो ये ऑल इज़ वेल थोड़ा बड़ा आ गया, फॉन्ट्स चेंज हो गए उसके, लेकिन वो बोल्ड इटैलिक की इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि शायद वो बोल्ड इटैलिक उसमें अवेलेबल नहीं होगा। जो फॉन्ट फेस में जो स्टाइल अवेलेबल है वही ड्रॉ होगी। आपके कहने से यहाँ पे हम सेट करेंगे तो वो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो अवेलेबल है स्टाइल तो वो अप्लाई होगी, अवेलेबल नहीं है तो वो अप्लाई नहीं भी हो सकती है। देखो अभी तक यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रही है। टाइप फेस डॉट बोल्ड इटैलिक कैनवास क्रिएट टाइप फेस डॉट सेरिफ टाइप फेस डॉट बोल्ड अंडरस्कोर इटैलिक, फिर सेट किया टाइप फेस को। ओके, सेट कलर, ओहो यहाँ पे टाइप फेस को नल कर दिया। ओह माय गॉड, तो उसकी अब असर ही कहाँ से होगी? मोनोस्पेस की भी असर नहीं हो रही थी, वो नल वाला लाइन निकालना भूल गए थे हम। देखो ये मोनोस्पेस है। मोनोस्पेस में क्या होता है, जनरली हर फॉन्ट की साइज सेम रहती है। ऑल इज वेल। अब देखो ये थोड़ा साइज बड़ा था तो बाहर निकल गया है ना। हमने सेंटर में ड्रॉ किया, लेकिन वो सेंटर से ड्रॉ हुआ। एक्चुअली वो सेंटर में ही लाना है हमें, तो हम वैसा भी कर सकते हैं, उसको एक्चुअल सेंटर में भी ला सकते हैं। देखो ये फॉन्ट अगर बदलने हैं हमें तो यहाँ पे हम मोनोस्पेस की जगह पे सैंस सेरिफ लिख सकते हैं। Moreover, we can set certain properties of a typeface such as anti-aliasing, underline and strike through using the setFlex method. setFlex के द्वारा आप anti-alias, underline text और strike through वगैरह कर सकते हो। ओके, जैसा भी ये इस तरह का आउटपुट अंडरलाइन भी है और स्ट्राइक थ्रू भी है, ये हम कर सकते हैं setFlex मेथड के द्वारा। देखो ये फॉन्ट बदल गया। We can also use custom typefaces with our application by including the font file as an application asset and loading it on demand। मैंने जैसे आपको बताया कि हम बाहर से भी कोई फॉन्ट को लोड करके, मतलब कि बाहर से कोई फॉन्ट्स डाउनलोड करके अपने एसेट्स फोल्डर में फॉन्ट्स फाइल को रख सकते हैं और ऑन डिमांड उसे वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज अ हैंडी वे फॉर प्रोवाइडिंग अवर एप्लीकेशन विद कस्टम लुक एंड फील for implementing language symbols that are not supported natively or for custom symbols। इससे क्या होगा कि आपके कुछ ऐसे सिम्बल्स, आपके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो बिल्ट इन जो फॉन्ट्स है एंड्रॉयड के उसमें अवेलेबल नहीं है, वो कैरेक्टर्स कोई स्पेशल सिम्बल्स जो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसे आप बाहर से लोड करके डिस्प्ले करवा सकते हो।
Okay, so to use a custom font we need to download its file and store it in the project directory assets fonts. आपके प्रोजेक्ट में assets नाम के फोल्डर के अंदर fonts नाम का फोल्डर बना के आपको उसमें रखना है. फिर अगर उसमें आपने फॉन्ट को रख दिया तो फिर उसमें जो फॉन्ट्स है उसे यूज़ करने के लिए आपको typeface.create फ्रॉम एसेट मेथड कॉल करनी है. कौन सी मेथड? typeface.create फ्रॉम एसेट. गेट कंटेक्स्ट डॉट गेट एसेट्स. फिर फॉन्ट का जो भी नाम है आपका वो यहाँ पे आप पास करके उस फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो. वेरी सिंपल. In the above code we have a font file available in assets folder and subdirectory fonts. Name of the file is chess1.ttf. तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर टाइप के फॉन्ट को हमने लोड करवाया. Moreover, we can also measure the text using getBounce and measure text methods. जो मैंने आपको बताया था कि सेंटर में बराबर नहीं आ रहा है वो फॉन्ट, तो सेंटर में लाना है. तो एक्चुअली वो तो टेक्स्ट ड्रॉ हो रहा है, पूरा टेक्स्ट ऑल इज वेल. वो ऑल इज वेल का जो सेंटर है वो स्क्रीन के सेंटर में आना चाहिए. तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऑल इज वेल जो लिखा हुआ आता है उसका जो मेजरमेंट है कितना है, विड्थ हाइट, वो मेजर करना चाहिए. उसके बाद हमें मिल सकता है. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पेंट डॉट मेजर टेक्स्ट. पहले ऑल इज वेल टेक्स्ट को मेजर किया, फिर उसकी टेक्स्ट साइज हमने रिट्रीव की. ऑल इज वेल मेजर किया मतलब कि उसकी हाइट मेजर की, फिर उसकी विड्थ मेजर की. फिर क्या किया कि स्क्रीन के सेंटर से माइनस कर दिया उतना, तो उतना लेफ्ट जाएगा उतना अप भी जाएगा. समझ में आ रहा है? जितनी हाइट है टेक्स्ट की उसमें से आधा कम कर दिया, सेंटर पॉइंट में से आधा उतना कम कर दिया. अगर फॉन्ट की साइज, फॉन्ट की हाइट 10 पिक्सेल्स है, 10 पिक्सेल्स, तो स्क्रीन का जो सेंटर है उसमें से 5 पिक्सल माइनस कर दिए, तो 5 पिक्सल अप जाएगा. और ड्रॉ होगा तो 5 पिक्सल डाउन जाएगा तो सेंटर, 5 पिक्सल डाउन जाएगा तो नेक्स्ट 5 पिक्सल. तो पूरा सेंटर में दिखेगा, स्क्रीन के पूरे सेंटर में दिखेंगे फॉन्ट्स. देखो यहाँ पे फ्लॉट m इज इक्वल टू पेंट डॉट मेजर टेक्स्ट ऑल इज वेल, और फ्लॉट n इक्वल टू पेंट डॉट गेट टेक्स्ट साइज, पेंट डॉट गेट टेक्स्ट साइज. जो भी साइज हमने सेट की है, साइज अभी हमने सेट कितनी की है, 60, तो वो यहाँ पे मिलेगी. ओके, ये सब करने के बाद हमें ये करना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, गेट विड्थ डिवाइड बाई 2 माइनस विड्थ जो है तो उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, m, विड्थ में से n और हाइट में से m. ठीक है. अभी जो वो थोड़ा साइड में आ रहा है, अब बराबर उसको सेंटर में लेना है स्क्रीन के, तो वो सेंटर में आ जाएगा. सॉरी, मेरे ख्याल से हमने m और n को गलत जगह पे दे दिया, m n, और उसकी साइज भी बढ़ा देते, 80 कर देते हैं. अच्छा, माइनस डिवाइड बाई 2 करना भूल गए, डायरेक्ट माइनस कर दिया m डिवाइड बाई 2 और n डिवाइड बाई 2.
आ गया बराबर सेंटर में। अभी ऑल इज़ वेल, ये पूरा आपका सेंटर में। अदरवाइज़ क्या हो रहा था, सेंटर से शुरू होके बाहर जा रहा था। ये डिवाइड बाई 2 तो इसलिए करना पड़ता है ना, मैंने बताया आपको टेक्स्ट की हाइट सपोज 10 है तो सेंटर में से माइनस कितना करना है, 5 करना है। टेक्स्ट की विड्थ सपोज की 35 है तो सेंटर में से माइनस कितना करना है, 17.5, इस तरह से। ठीक है, तो ये था ड्राइंग ऑन कैनवास।